اب رخ کرتے ہیں پونچھ آزاد کشمیر کا۔ ہمارے نمائندہ وقاص لسانی کی رپورٹ کے مطابق ڈائریکٹر وائلڈ لائف فشریز ڈپارٹمنٹ آزاد جموں کشمیر نعیم افتخار صاحب کی خاص ہدایات پر میجر ریٹائرڈ محمد پرویز صاحب پروجیکٹ مینیجر پونچھ ریور مہاشین نیشنل پارک نے اپنے ماتحت عملے کو پونچھ ریور مہاشین نیشنل پارک میں غیر قانونی شکار کرنے والے شکاریوں کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے کی ہدایات دی ہیں، جس کے نتیجے میں دن اور رات کوآپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پونچھ ریور مہاشین نیشنل پارک کے ملحقہ علاقہ جات میں وائلڈ لائف کا شکار کرنے والے شکاریوں کے خلاف گہرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے علاقے شادرہ میں طالب علم کا ہوم ورک کے بغیر آنا جرم بن گیا۔ اسکول ٹیچر نے بہیمانہ تشدد کر کے بچے کو بے ہوش کر دیا۔ والدین کی انصاف کے لیے تھانہ شادرہ میں درخواست دائر۔ لاہور شادرہ میں بچے پہ تشدد کے واقعات رک نہ سکے۔ ایک ہی ہفتے میں شاگرد پر تشدد کا دوسرا واقعہ۔ طالب علم کا ہوم ورک نہ کر کے آنا جرم بن گیا۔ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز اور پرنسپل کا ہوم ورک کر کے نہ آنے پر 9ویں کلاس کے طالب علم پر وحشیانہ تشدد۔ ٹیچر کا ڈنڈوں مکوں کا زیادہ استعمال سے منہ، ناک، آنکھیں اور گردن بری طرح متاثر، خون بھی جاری ہو گیا۔ بچے اسکول میں بے ہوش ہو گیا اور طالب علم کے دوستوں نے گھر پر والدین کو اطلاع دی تو والدہ کے آنے پر پرنسپل عبدالحق اور ٹیچر فرار ہو گئے۔ ماں کی تھانہ شادرہ کے باہر رو رو کر انصاف کی اپیل۔ والدہ کا کہنا ہے ہمیں صلح کے لیے دھمکیاں مل رہی ہیں، ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ابھی بھی اس کو نہ تصویر بنانے دے رہے ہیں نہ بات کرنے دے رہے ہیں، اور وہ سب اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے مجھے بار بار فورس کر رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتی، اس کو سزا دی جائے، میرے بچے کی آنکھ پھوڑی ہے اس نے۔ آزاد کشمیر میں سیاسی اکھاڑا اپنے عروج پر ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں۔ ہمارے نمائندہ آزاد کشمیر وقاص لسانی کی رپورٹ کے مطابق آج ڈڈیال آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا بڑا انتخابی جلسہ PWD ریسٹ ہاؤس کے احاطے میں منعقد ہوا، جہاں وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور، وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، ممبر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے بھی شرکت کی اور اپنے سینکڑوں ساتھیوں کو بھی لے کر آئے۔ جنہاں ایک ایک کل محنت کری تحریک انصاف کی ایسی قوت بنائی ہوڑیا کہ لوگ اسے نان اور کبرانے پہ بیرسٹر صاحب تو سنگی سلام پیش کرنے ہیں۔ اتنا گل بہت ساری گلاں ہوئیاں، لیکن میں منسٹر صاحب کچھ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب چودھری اظہر صادق صاحب وہ انشاءاللہ وہ تمام کمیاں اور محرومیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری کرے گا۔ حالت جس طرح انہوں نے بہتر کی تھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح انہی کا جو مشن تھا اس پر ہم بھی گامزن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ڈڈیال میں بہت صورتحال بہتر ہوگی، اور جب یہاں پر ہماری حکومت آئے گی تو ڈڈیال کے لوگوں نے بے شمار قربانیاں۔ شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ سابق وفاقی وزیر اعجاز الحق سے صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے ملاقات کی۔ ان سے ملک کی موجودہ سیاسی اور افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی سلامتی اور خود مختاری کے پیش نظر جو امریکہ کے سامنے دو ٹوک موقف اختیار کیا وہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوسری طرف افغانستان میں امریکی فوج کے انخلاء اور وہاں پر قیام امن کے حوالے سے وزیر اعظم نے جن جذبات کا اظہار کیا وہ عوام کی حقیقی ترجمانی کی ہے۔ شیخوپورہ سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ لاہور روڈ پر جمال ٹاؤن سے براستہ 16 سے زائد دیہاتوں کو جانے والے واحد سرکاری راستے کو بازار افراد نے دیواریں کھڑی کر کے آمد و رفت کے لیے بند کر دیا۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ مال کے حکام کے نوٹس میں معاملہ آنے کے باوجود تاحال راستہ بحال نہ ہو سکا۔ ہزاروں افراد راستہ بند ہونے کے باعث شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ باثر افراد کے خلاف دھرنا دے کر احتجاج بھی کیا۔ راستہ بند کرنے والے باثر افراد انجم فقیر، عثمان اشرف، مدثر جاوید، میاں فہد اور شاہد وغیرہ کو حکومتی جماعت PTI کے سابق ٹکٹ ہولڈر کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ سڑک دا رستہ جی 15 سال 16 سال تو جی پل ہے نا رانا تنویر صاحب کی وسادت نال یہ بنوائی ہے۔ ساتھ رستہ ویسے تو بڑی قدیمی چلتا آ رہا ہے، رنگیاں جنگیاں
ਇਹਦੇ 15-16 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸ਼ਾਹਰਾਆਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚੰਦ ਪਲਾਟ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਵਟ ਲਈਏ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਰਾਆਮ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਾਹਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, DCO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, AC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਚੰਦ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਲਾਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੇਟ ਕੁਤਾਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਗਫਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਪਿੰਡ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ। ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੋਡ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੋਡ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਤਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ ਰੇਤ ਲਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, DCO ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਮਨਸਬੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਜੀ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ ਜੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਰਕਬੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ DPO ਤੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ AC ਤੇ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੇ ਰੰਗੀਆਂ ਜੰਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਸਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਲਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਗਾਹੀ ਗਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਣਾ ਟਾਊਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। आरिफवाला से आपको अपडेट करते चलें। तहसीलदार चौधरी गजनफर नवीद ने घुटने टेक दिए मगर पटवारी न माने। तफसीलात के मुताबिक तहसीलदार चौधरी गजनफर नवीद अंजुमन पटवारियां के एहतजाजी कैंप में जा बैठा मगर सुलह न हो सकी। अंजुमन पटवारियां के सदर ने दो टोक जवाब देते हुए कहा कि तहसीलदार चौधरी गजनफर नवीद नहायत बद अखलाक और रिश्वतखोर इंसान है। अंजुमन पटवारियां के सदर ने बताया, अगर हम किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी को वागुजार करवाने के लिए जाएं और वहां कब्जा माफिया से दस्तों गिरबान हो जाए तो तहसीलदार गजनफर नवीद हमें ही बुरा भला कहकर टाल मटोल से काम लेता है। खुद कब्जा माफिया से मोटी रकम लेकर उन्हें कब्जा करने की इजाज़त दे देता है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में कोई भी इज्जत नहीं रही। हम ऐसे रिश्वतखोर बद अखलाक इंसान के खिलाफ कार्रवाई होने तक कलम छोड़ एहतजाज का ऐलान करते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कामोकी का नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कामोकी और सादुकी में ऑपरेशन सादुकी में पुख्ता घरों को मसमार कर दिया गया। कई दुकानों को भारी जुर्माने भी आयद किए गए
और कई दुकानों को सील किया गया। सादुकी से हमारे नुमाइंदे मियां अजहर अली की रिपोर्ट के मुताबिक सादुकी में आज असिस्टेंट कमिश्नर कामों की मैडम हिरा रिजवान की हिदायत पर MOR मैडम हिरा हफीज़ का नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, नाजायज़ तजावुज़ात करने वाले दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद करने के साथ साथ दुकानों को भी उनकी सील किया गया। इस मौका पर MOR मैडम हिरा हफीज़ ने अपने बयान में कहा कि ये ऑपरेशन 1 हफ्ते तक जारी रहेगा, किसी किस्म की नाजायज़ तजावुज़ात को कायम करने नहीं दिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मेलसी से अपने नुमाइंदे इमरान बलोच की इस रिपोर्ट के मुताबिक तब्दीली सरकार में करप्शन उरूज पर मेटल रोड की साइट्स पर मट्टी न डालने से गड्ढे पड़ गए, हादसा का खतरा लाहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मेलसी के इलाके हेडशेयर गर्भ से ठेंगी तक बनने वाली कारपेट रोड की ठेकेदार ने करप्शन करते हुए सड़क की साइडों पर मट्टी नहीं डाली, जिसकी वजह से साइडों पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गए। गैम्बर से खबर शामिल करते चले हमारे नुमाइंदे आबिद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गैम्बर में रिहाइश पजीर तमाम अक़वाम मेरे लिए काबिल एहतराम है। इनकी खिदमत और इनकी खुशी गमी में हमेशा मैं इनके साथ रहा हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी अपना फ़र्ज समझकर साथ ही रहूँगा। इन ख्यालात का इजहार राना इमदाद हुसैन ने गुज़िश्ता रोज़ क्लब ओकाड़ा केंद्र से मुलाकात करते हुए कहा। मज़ीद कहा कि हम सब एक शहर में बसते हुए हैं, हमारी खुशी गमी एक है। आवाम के नुमाइंदे आवाम के खादिम होते हैं। अपने मुल्क, शहर, गाँव, इलाके की तामीर और तरक्की में हम सब पर फर्ज है कि हम अपने इलाके की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। मरी से खबर शामिल करते हैं रईस बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियत साबिक जनरल काउंसलर वाहिद मुस्तफ़ा अब्बासी के भाई जाहिद मुस्तफ़ा अब्बासी तवील अलात के बाद रज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। मरहूम को हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में इनके आबाई कब्रिस्तान नंबल मरी में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा मारूफ आलिम दीन कारी सैफुल्लाह सैफी ने पढ़ाया। नमाज जनाजा में मुस्लिम लीग नून पंजाब के नायब सदर राजा अतीक, मुस्लिम लीग नून तहसील मरी के सदर राजा दफ्तर अब्बासी, जबकि हाजी अक्सरीन अब्बासी, मुफ्ती खालिद हुसैन अब्बासी और साबिक नाजिम नंबल राजा अरशद नवाज अब्बासी और साबिक नायब नाजिम मरीज सिटी मिर्ज़ा सुहेल बेग और उमर जावेद अब्बासी एडवोकेट ने भी शिरकत की। अब रुख करेंगे शुजाबाद का। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक पंजाब के दीगर शहरों की तरह म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद की इंफोर्समेंट टीम तजावुज़ात के खात्मे के लिए हफ्ते में मुतहर्रिक हो गई। तफसीलात के मुताबिक ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी शुजाबाद शेख कासिम शकील और इनके PA ज़ीशान शाह की ज़ेर निगरानी इंफोर्समेंट टीम ने रेलवे रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया और दुकानदारों को वार्निंग भी दी और अपना सामान अपनी दुकानों के बाहर रखा हुआ था, जिन्होंने उनसे कब्जे में ले लिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कासिम शकील ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अवाम उन्नास के लिए इनके दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब रुख करेंगे शुजाबाद का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर अकबर मेयो उम्मीदवार चेयरमैन UC गुरदेजपुर, जनरल सेक्रेटरी इंसाफ प्रेस क्लब के माहाना इजलास में इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत समाजी, सियासी, मौशी इनकलाब और इंसाफ के लिए हर दम पुरज़म है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्ट निज़ाम के खिलाफ भी भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत बुनियादी अशियाए ज़रूरियात तक आवाम की रसाई को आसान बनाए ताकि तमाम तर वसाइल बरोए कार ला सकें। उन्होंने कहा कि खाने पीने की अशिया से लेकर इलाज, मुआवजे और सर पर छुपाने की सहूलतों समेत रोज़मर्रा की तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कलील मुद्दत और तवील मुद्दत से पॉलिसीज़ बनाई जाएं, जिनके समरावर होने के बाद मौजूदा नस्ल तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो सके। मुकामी सहाफ़ी उम्मीदवार जनरल काउंसलर UC इजहार ताज कुरैशी ने कहा कि मेरा सियासत में आने का मकसद आवाम को सहूलियात फराहम करना है। इन ख्यालात का इजहार नौजवान क़यादत मुकामी सहाफ़ी उम्मीदवार जनरल काउंसलर अजहर ताज कुरैशी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा। हमने हमेशा अवामी खिदमत को तरजीह दी है और बग़ैर किसी रुकावट के अवामी खिदमत का सिलसिला शुरू कर रखा है और मुझे अपने हल्के की आवाम के काम करके बहुत खुशी महसूस होती है। इस बारे में खुद UC 96 से रियाज चुनने वाले के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूंगा, जो कि मेरे सियासी उस्ताद भी हैं। इनका माजी भी बेबाक है। सियासत में आने का मकसद हल्के की गयूर आवाम की महरूमियों का अजाला करना है और इनको मुमकिन सहूलियात भी फराहम करना।
जामपुर की हजाना बरादरी के लड़कों और रिंद बरादरी के लड़कों की दुबई में कुछ अरसा कबल तलक कलामी हुई थी, जिसका रिंद बरादरी को बहुत रंज हुआ और आबिद हुसैन रिंद ने धमकी भी दी थी कि पाकिस्तान जाकर तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। तकरीबन 15-20 दिन पहले रिंद और हजाना दुबई से वापस पाकिस्तान आ गए। वापस पाकिस्तान आने के बाद आबिद हुसैन रिंद ने अपने रिश्तेदारों के साथ हम सलाह होकर 11 बंदों के साथ क्लाशन कोफे और पिस्टल लेकर असर की नमाज के बाद जब हजाना बरादरी के लड़के मैच खेल रहे थे तो आकर दिन दिहाड़े थाना सिटी जामपुर के ऐन सामने हजाना बरादरी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर हाफिज मोहम्मद जलील हजाना और मोहम्मद मूसा हजाना शदीद जख्मी हो गए और मोहम्मद इस्माइल हजाना को क्लाशन कोफ के बट मारकर सर फाड़ दिया गया और एक मोटरसाइकिल होंडा 125 और एक मोबाइल छोड़कर फरार हो रहे थे कि SHO सिटी अब्दुल गफ्फार बरमानी और ASI शकील अब्बास दरीक्षक ने 5 मुलजिमान को क्लाशनकोफ और पिस्टल समेत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बस्ती काबुल खान बलवानी मौजा जहानपुर जिला राजनपुर में फाजिलपुर राजा मुख्तार मलिक के मुताबिक इदारा IRM और NRSP की तरफ से मोटरसाइकिल मैकेनिक का कोर्स मुकम्मल करने वाले नौजवानों में असनाद तकसीम की गई। मेहमान खुसूसी वडेरा काबुल खान बलवानी और वडेरा मोहम्मद असलम हलवानी बलोच और नसरुल्लाह हलवानी बलोच की शिरकत खुसूसी दुआ भी की गई। उस्ताद मलिक मुख्तार हुसैन ने खुसूसी दुआ करवाई और असनाद और डिप्लोमा लेने वाले को मुबारकबाद भी पेश की। गड़ी यासीन के नवाही गांव रईस मोहम्मद नवाज दिनारी में शाहीन खान और मेरन दिनारी का स्याहकारी के पुराने चलते हुए तकरार पर फायरिंग के नतीजे में मेरन दिनारी के ग्रुप का बशीर दिनारी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब शाहीन दिनारी के ग्रुप का आशिक दिनारी शदीद जख्मी बताया जा रहा है। आशिक दादन जो पुट्रू साटा सगो बता हम लोग कुरान पे मुझे मुर्द सीरस अब मसला कर रहे थे मसला बैठ महीनाज में आने जमीन पे कब्जो असन जमीन पे कब्जो असा मारा इरशाद नमाज जो भाटे इरशाद नालो जमीन पे जमीन पीर नागपुर में तसादुम का वाक़या पेश आया। एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी। गड़ी यासीन के इलाके रईस मोहम्मद नवाज में 2 ग्रुपों में तसादुम। दिनारी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। पुलिस एक शख्स जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। नाश और जख्मी को अस्पताल से गड़ी यासीन में मुंतकिल किया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त बशीर दिनारी के नाम से हुई। वाक़या ज़मीनी तनाज़े पर पेश आया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गड़ी यासीन थाने की हदूद में वाक़या पेश आया और पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। खबर शामिल करते हैं तौसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक तौसा शरीफ कस्बा सोकड़ के मकीनों का मनशियात फरोशों के खिलाफ रैली और एहतजाजी मुजाहरा खालिद बलोच की क़यादत में मुजाहरा किया गया। रैली में बड़ी तादाद में सोकड़ के मोअज़्ज़िज़ीन और नौजवानों ने शिरकत की और रैली कस्बा सोकड़ से रवाना होकर मंगरोड चौक और हाशिम चौक से होती हुई कलमा चौक पर पहुंची। इस मौका पर मुकर्ररीन खालिद बलोच, मुफ्ती सुहेल, जुल्फ़िकार बलोच, नसरुल्लाह बलोच और दीगर ने कहा कि सोकड़ में चर्स शराब सरेआम फरोख्त होती है। नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मुआशरे को मनशियात से पाक किया जाना चाहिए। मनशियात फरोशों के खात्मे तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। छांगा मांगा के करीब इलाहाबाद की 18 साला सना जिस्मानी पट्टों के खिंचाव के बाद जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुकी गुर्बत की मारी वाहिद कफील 70 साला नानी की हिम्मत भी जवाब देने लगी। किसी मसीहा की मुंतजिर वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील की है। इफलास ज़दा दीवारों की ईंटें धाड़े मार मार कर रोती हुई छत 400 झांकती हुई गुर्बत की तफसीर बयान करता हुआ एक ऐसा घर जिसके मकीन बेबसी और कसम पुरसी की अमली तस्वीर बने हुए हैं। किसी ऐसे मसीहा के मुंतजिर हैं जो इनके दुखों का मदावा कर सके। इलाहाबाद की 18 साला रिहायशी बदकिस्मत सना की पट्टों के खिंचाव की वजह से उसके हाथ और पाँव मुड़ गए और वो चारपाई तक महदूद होकर रह गई है और वो लोग किसी मसीहा के मुंतजिर हैं जो कि उनकी मदद करें। खैरपुर नातन शाह में गोली लगने से मासूम बच्चा जाँ बहक जबकि एक मासूम बच्चा जख्मी हो गया।
हलाक बच्चे का नाम सलीम अल्ताफ चांडियों की उम्र 7 साल बताई जाती है। जख्मी बच्चे का नाम गुलाम हुसैन वल्द माजिद उम्र 8 साल। वाक़या इत्तफाक से पिस्टल की गोली लगने से पेश आया। वर्सा का कहना है वाक़े की मजीद तफ्तीश भी चल रही है। वाक़या खैरपुर नातिन शाह के नवाही गांव लश्कर चांडियों में पेश आया। जांबाक होने वाले बच्चे की लाश जब घर पर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। खबर शामिल करते हैं मेलसी से अपने नुमाइंदे इमरान बलोच की इस रिपोर्ट में। फहद अकबर, डिप्टी सेक्रेटरी डिजिटल मीडिया इंसाफ यूथ विंग जनूबी पंजाब की मरकजी सदर। इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान की दावत पर इंसाफ यूथ विंग कन्वेंशन सरगोदा में शिरकत की। इस मौका पर फोकल पर्सन ख्वाजा शमसुल हसन, मरकजी सदर मौला बख्श सोमरो, मरकजी जनरल सेक्रेटरी आरिफ रिंद, सदर शुमाली पंजाब सरदार तैयब हैदर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शुमाली पंजाब जेदी खान जदोन की खुसूसी शिरकत और तंजीम साजी मुकम्मल करने पर गौर फिक्र भी किया गया। जतोई लिंक रोड पर से नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। इत्तला पर मेहर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर TSQ अस्पताल मेहर में मुंतकिल कर दिया। मेहर अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही ने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। अस्पताल में सर्फ खाना न होने की वजह से बरामद होने वाली लाश सारा दिन अस्पताल के अहाते में स्ट्रेचर पर पड़ी रही। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल इंतजामिया हरकत में आ गई। तनकीद के बाद अस्पताल इंतजामिया ने लाश का पोस्टमार्टम किया। नामालूम लाश की शिनाख्त तहसील कंडियारों के गाँव के रिहायशी शाहजहान के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक लाश 3 दिन की पुरानी लग रही है। मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है।